If I talk about startups, so what kind of idea do you have about this startup? The people are in the keep of using the word startup, 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 and they are in the habit of speaking, we are doing for startup. What is actually startup is all about? And why I am asking this question? Because you all guys are in final year, and after 3 months, somehow you have to sell your skills to grab the opportunity of job. Either you would go for MBA or some other courses, but even that would only save you for 2 years. Okay? Even after 2 years of completion of your MBA, you have to come to the real world. And my dear students, I will tell you, the actual face of this world, when you leave your student position, is quite different. And the people, those who have been passed out in 2020, 21, 22, 23, they are already existing in the market. Clear? And the people like us, crocodiles, again, they are in the market. So while choosing the people as a resource for their company, do you think they would take the things casually? No, sir. They would pick the asset for their company. They won't take the selection decision within a second or within a minute or within an hour. They keep on checking you on different phases through your testimonials, through your way of representing yourself, through your credential, through your social media post. Even sometimes the company representatives sends the feedback asking form to the colleges or HR professionals. This is this students or this is this faculty have approached us. We are in the final stage of recruitment. Please let us know about this gentleman or this lady performance. Clear? So after 3 months, irrespective of fact whether you will go for job or you will go for higher studies, if you are going to do the job, where you are finding yourself right now, whether you think that you are capable to grab good position or if you want to go for higher studies, then did you think in what stream should I join so that whenever I came out from the college, I should be capable of getting the good package of salary. If I talk about the package in 2008 or 10, the HCL offered to their freshers 25,000. Kitna? 25,000. At what time? 2008. Clear? Today we are standing in 2024 and they are offering package up to 30,000. They are offering package up to 30,000. So from 2008 to 2024, there is a gap of 16 years. There is a gap of 16 years. But the incremental offering provided by the HCL was increased by 5,000 only. Do you think with the price band of 25 to 30,000 you would be able to fit yourself and you can compensate or you can cope up with all the expenditure that is going around to go through your bread and butter and essential of your life? So how would you do? Because somehow, someday, you have to prepare yourself. कब तक आप अपने माँ बाप के पैसों पे डिपेंड रहेंगे?
आपने 10th किया 11th में, 11th किया 12th में, 12th किया, पापा ने पूछा कौन से कॉलेज जाओगे, आपने कहा यहाँ जाएंगे, डाल दिया. Then what? Somebody, or sometime you have to go for your own job, and this is not too much far away. It is just 3 months away. It is just 3 months away. आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ पे आपको लगता है 25,000 वो 2008 में ऑफर करते थे और आज की तारीख में भी वो 30,000 ही ऑफर कर रहे हैं. And SCL is a very renowned company. SCL is a very renowned company of Shiv Nadar Das. Shiv Nadar Das is the founder of that particular company. And why they have gone for the increment of 5,000 only? Because plethora of workforce is available in the market. The people, those who have been passed out in 2020, 21, 22, 23, they are existing in the market and they are looking for the jobs. Means the production is more and consumption is. So they are in the driving position and they are somehow lowering the salaries amount because the people are ready to compensate with the lower salary. Clear? So you have two options. Either you should go with that stream, you should also take the smaller salary, start from 25 to 30,000, or you should go for the bigger ones, or you should have your own startup. Clear? You have three choices. Clear? And some of them, those who are neither coming nor studying, what they will do? God knows. Clear? So why we are here? Now I am going to show you a realistic picture of the professional world. Today if I talk about the startups, Byju's, Flipkart, Paytm, Blinkit. Clear? The Blinkit have their operations history. When you have seen the first advertisement of Blinkit, it is not more than 1.5 years. 1.5 साल से पहले आपने उसका विज्ञापन नहीं देखा था. Clear? Zomato is running from last 5 or 6 years. Swiggy running from last 5 to 6 years. Paytm from 2015 it was existing but not into the practice. After 8 November 2014 it comes to the practice by the demonetization practice governed by the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. 11 नवंबर 2014 को जब नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया तब लोगों ने पेटीएम यूज करना शुरू किया. अब 2014 से आज हम कहाँ खड़े? 10 साल पेटीएम को चलते हुए हो गए. अगेन पेटीएम इज इन लॉस. Byju is a edutech company, those who are giving. So what I am saying, Byju's, Paytm, Zomato, Swiggy, Blinkit. Forget about Blinkit. Byju's, the world richest cricket council, that is BCCI. उस BCCI की इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाला बायजू लॉस में था. क्लियर? बायजू का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? शाहरुख खान. शाहरुख खान is also one of the renowned celebrity who charge lots of money to endorse any product. So if I talk about Byju, if I talk about Zomato, if I talk about Paytm, they are still making losses. But how do they make their everyday operation? If they are in losses, so somehow they should have lack of money. Clear? If they are lacking in money, how they are endorsing themselves, how they are managing their day-to-day operation, how they are managing their marketing and promotion, how they are funding their TV broadcasting advertisement. ये मेरा सवाल है. आप जानते हो पेटीएम लॉस में है,
फ्लिपकार्ट लॉस में है, जोमेटो स्विगी लॉस में है, बट इवन इनके टीवी एड्स आपको देखते हुए मिलेंगे, इनके प्रिंट मीडिया एड्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके स्पॉन्सर्ड और डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये लॉसेस में हैं तो ये लॉसेस क्यों बियर कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, पैसा इनके पास कहां से आ रहा है? अगर लॉस में है तो इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, हजारों एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उनका, बिल्डिंग का फिक्स कॉस्ट उनको रीपे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सब कुछ तो कर ही रहे ना। शाहरुख खान ने फ्री में तो ऐड किया नहीं होगा, ऐड किया, पैसा लिया और तो चलता बना। क्लियर? लेकिन बायजू तो नहीं भाग सकता ना। तो ये सारे आज लॉसेस में है, तो ये कहां से सारी चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं? ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर किताब लिख के कोई चाहता कि हाँ इसको पढ़ के आप मिलेनियर बनिए, तो मेरे ख्याल से आज गरीब कोई, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी अकाउंट्स में नहीं लिखा। सोचिए इनके पास वो पैसा कहां से आता है? और ऑब्वियसली दे आर स्पेंडिंग थाउजेंड एंड थाउजेंड करोड़, नॉट इन लैक्स, दे आर स्पेंडिंग थाउजेंड एंड थाउजेंड करोड़। How they are getting money to spend thousand and thousand crores? कभी सोचा है? कोई आंसर देना चाहेगा? Backup of what is your name? Fahad. Fahad is saying backup of funding from investor. So do you think the investor will invest their amount in a company those who are making losses? No, sir. Then Fahad is saying, तो Fahad क्या गलत बोल रहा है? So they are buying shares. They are buying Shares. shares. Okay. और कोई एग्जांपल? Sir, reserves. कितना रिजर्व? रिजर्व भी तो उसका खर्च ही होगा ना। If they are in losses, why they are not shutting their business down? क्या? लोग के जितने भी वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे भी अपलोड्स होते हैं, तो सर अपलोड हुआ वीडियो जो यूट्यूब पे रहता है, मतलब जैसे उसका जो रिजल्ट बढ़ता रहता है, तो सर उनको भी पैसा उन लोग को पे किया जाता है लाइव से। वो तब डिपेंड होता है जब आपकी उस वीडियो को एड्स मिलते हैं। क्लियर? लेकिन उस एड्स के उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। सर जो लॉयल रहेंगे सर वो तो अपना देंगे। कितने परसेंट लॉयल? अगर मान लो लॉयल कस्टमर्स की ज्यादा हैं तो लॉसेस में तो होना ही नहीं चाहिए। If they are having more number of loyal customer, then they won't be in loss. Why they are in loss? And even they are in loss, why they are spending more and more amount of money through their advertisement? And how they are getting the money? If they are getting the fund from the investment or investors, then how they are managing their investors? This is the question of this case study. सर उनकी कल आप फर्दर जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट, जाओगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट उनकी, हाँ? फर्दर इन्वेस्टमेंट further investment, what they should do? सर वो किसी और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि प्रॉफिट में रहती है, या फिर अलग अलग कंपनीज जो कि ना रन कर रही होती हैं या स्टार्टअप्स होती हैं, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं कौन? बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम की, मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये इन्वेस्ट करेंगे? इनके सर पास पैसे करेंगे, नहीं है। सर उनको अगर अर्न करना है तो जरूर करेंगे। पहले अपनी कंपनी सेल करेंगे ना, या पहला अपना जो बेबी है उससे अर्न कर लेंगे ना, जो उनका बेबी प्रोडक्ट है। या पहले वो पड़ोसी के घर में जाएंगे या दूसरे के खेत में अनाज उगाएंगे। हो सकता है दूसरे के खेत का अनाज जब उनका पकने का तैयार हो वो अपना ऑनरशिप लेके आ जाएगी, इट इज माई। क्लियर? पहले अपनी जो कंपनी है, पहले जो अपनी ओरिजिन है उसको नरिश करेंगे ना। रास्ता जो है ठीक रास्ता सोच रहे हो, लेकिन ये तब होता है जब आप सोचते हैं। कुछ एक लोग रास्ते में पहुंचे हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट 10 और 20%, 2 या 3 लोग। रेस्ट ऑफ द पीपल आर इवन नॉट थिंकिंग हाउ दे आर गेटिंग मनी।
आरबीआई नहीं दिया, बैंक लोन नहीं देगी। Do you think the companies will take burden of loans? No, sir. No, sir. Because after getting loan, they have to repay the loan. ऊपर से इंटरेस्ट भी लगेगा तरफ पर। एक नाम आता है BFT, बिग फूल थ्योरी। Yes, sir. बिग फूल Theory. थ्योरी, क्लियर? So show करते हैं in their balance sheet that they are loss making. No, that is cooked balance sheet. The people, those who are having money and they want to invest their money, they are having the ample knowledge. They can easily find out whether the balance sheet is cooked or it is original balance sheet. Clear? अगर मैं कहूँ लोगों के पास 1000 करोड़ रुपया है, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, and they are billionaires. Even they are not having degree, but they are in the practice by the rule of thumb. Rule of thumb जानते हो? Rule of thumb और thumb rule? नहीं, पंचनामा मतलब thumb rule, the man those doesn't have degree but they are good in practice. मैं अगर यहाँ से किसी बीटेक मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को उठाऊं और मैं उसको कहूँ इस कार का इंजन खोलो, तो शायद उसके हाथ पैर कांपे, लेकिन बाहर वो जो गैरेज में मैकेनिक है उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो 10 मिनट के अंदर आपकी कार का इंजन खोल के बाइंड कर देगा. दैट इज कॉल्ड द मैन ऑफ थंब रूल या रूल ऑफ थंब. सो दोज हु आर बिलियनियर्स, ठीक है, झुंझुनवाला और बहुत सारे ऐसे हैं, दोज हु आर हैविंग बीकॉम बट they are having surplus amount of money beyond of your imagination, and they are good investor too. And the people, those who are running the business like Paytm or Zomato or Flipkart, they are also having a very sound mind where they can impress the investor. How they invest the investor, how they influence the investor. Here I quoted a term, big fool theory. That means the people, those who are investing, he is not fool. He is wise. He is very much intelligent. But for me, what I am trying to make him? Clear? But he is not fool. He is intelligent. मैं सिर्फ यहाँ बिग फूल थ्योरी एक कंसेप्ट का नाम है. इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो पैसा लगा रहा है वो फूल है. क्लियर? सपोज मेरे पास आज मेरा कोई कंपनी का स्टार्टअप है ए, ठीक है, आपका क्या नाम है? रामनीश, ठीक है. रमनीश क्या होता है जी? रामनीश है ना. रामनीश ने एक स्टार्टअप खोला और रामनीश के स्टार्टअप में अभी एक इन्वेस्टर्स की जरूरत है. क्लियर? अब सबसे पहले रामनीश का स्टार्टअप, इन्वेस्टर रामनीश के स्टार्टअप में बिजनेस क्यों लगाएगा? इन्वेस्टर कौन होते हैं? आपको लगता है जिसके पास बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस हैं वो पैसा क्यों लगाते हैं? उसके पास तो ऑलरेडी सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है. व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी? और वो इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना ही है तो बैंक्स में क्यों नहीं डाल देते? वो स्टार्टअप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? रामनीश, स्टार्टअप में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? स्टार्टअप सर अभी स्टार्ट ही हुआ है, किसी की ऑपरेशंस को करना है, कोई नई चीज करना है. बिजनेस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. ये लड़कियां जो पास होती हैं ये मोस्टली बुटीक खोल लेती हैं. तो बुटीक इज ए स्टार्टअप. इट्स ए ट्रेडिशनल बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनटू द मार्केट. ठीक. मेरे फादर की अगर मिठाइयों की दुकान थी और मैंने भी एक मिठाई की दुकान खोल ली, ठीक, तो इट्स ए स्टार्टअप. इट्स ए ट्रेडिशनल बिजनेस and the traditional business is already having competitors within the market. So if the competitors are in the market, that means somehow the probability of getting profit is less, because we have to face and we have to go all the phases of competition. Clear?
Startup means a company, a product or a services who doesn't have any competitor into the market. That means it is blue ocean strategy. We have no competitor in the market. I am on the driving seat, and on whatever cost I want to sell my product, I can sell it. That means the probability of getting return would be higher in a startup. Clear? That's why the investors are investing their amount into the startups. And they want return at what rate? 1 time, 2 time, at what time? What rate? And how many times? 20, 30 times. 20, 30 times. Clear? इसलिए इन्वेस्टर स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं. क्लियर? समझ में आई बात? अब स्टार्टअप को पैसे की जरूरत क्यों होती है? Why the startup needs fund? Why they are going to approach? If Ravnish have any unique idea and he find that his idea is really going to commercialize on a big success, why he was asking for the fund? भाई इसको मालूम है मेरा आइडिया बहुत बढ़िया है और इसको कोई दूसरा नहीं ले सकता और इसका नॉलेज मेरे पास ही है, तो मैं अपने घर के पैसों से चलाऊं. मैं क्यों इन्वेस्टर को इसमें ले रहा हूं? मैं इसमें इन्वेस्टर का अमाउंट क्यों ले रहा हूं? क्यों सरदर्दी पाल रहा हूं? और ग्रोथ. और कोई बिजनेस अनसर्टेन है स्टार्टअप के लिए. सर गाइडेंस मैंने मान लिया स्टार्टअप इज अनसर्टेन, बट समहाउ इफ यू हैव स्टार्टेड योर ओन स्टार्टअप, somehow you have a belief within you that I could succeed. अभी तो पैसा लगा रहे हो. अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो स्टार्टअप करोगे? ऐसा तो नहीं कि एक मूवी देखी उसमें एक गरीब आदमी दिखाया, उसने स्टार्टअप किया, करोड़ों रुपए कमा लिए, आप एकदम मोटिवेट हो गए, नहीं आज मैं भी स्टार्टअप करूंगा, मिलियनेयर बनूंगा, और माँ बाप के जितने पैसे थे सब निकाल लाया और उनको भी सड़क पे ले आया. ऐसा है क्या? वेब शो जो वेब सीरीज होती है उसमें ये दिखाते हैं, दे ग्लैमराइज द थिंग, दे एक्चुअली ग्लैमराइज द स्ट्रगल, दे एक्चुअली ग्लैमराइज द स्ट्रगल, बट द स्ट्रगलिंग लाइफ इज नॉट सो मच ग्लैमराइज or not having so much glamour. Because if I talk about me, I come to this college at 9:15, I wind up my process 5:15, and before 9:15 and after 5:15 I don't have any kind of obligation. But if you are having your own startup, you are having obligation before 9:15 or after 5:15 too, because you have to pay salary, you have to manage operational cost, you have to look after the government policies, you have to face the competitors, those who will come into the market in future, and that would be threat for you. Yes, sir. Clear? So being an entrepreneur or startup, it's a very Herculean task. It's not an easy task. Clear? You have to think again and again and all the time. You have to remain active. You have to remain focused. तो ये देखना कि मैं स्टार्टअप में, मैंने वेब सीरीज में देखा वो बहुत पैसे कमा रहा है और बहुत उसकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, नहीं. इसके पीछे के बियॉन्ड द या बिहाइंड द सीन चीजें बहुत टिपिकल होती है. क्लियर? मैं आज आपसे कहता हूं कि शाम तक आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है. आप में से कितने लोग शाम तक 1 लाख रुपए इकट्ठा करने की हैसियत रखते हैं? हाथ खड़ा कर जरा. लेकिन अपने पेरेंट्स से नहीं लेना. फिर कहाँ से लेंगे सर? इधर नहीं, ध्यान दो. If you are doing business, in a business, the credibility is one of the most essential thing that runs into the market. Clear? अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि इसका जो फाउंडर है, that founder having gray shade, then people doesn't invest their amount into your business or into your startup, because market runs on sentiment. हम अपने आप में बेशक महाचोर हैं, लेकिन हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि उससे बड़ा ईमानदार और कोई नहीं होना चाहिए. क्लियर?
हम जब पैसा लेते हैं तो हमारी सोच कुछ और जब देते हैं तो हमारी सोच कुछ, बिकॉज द ह्यूमन बींग्स आर द मैनिपुलेटर, बिगेस्ट मैनिपुलेटर ऑन द अर्थ. क्लियर? सो इफ आई टॉक अबाउट फंडिंग, तो बिग फूल थ्योरी क्या है? मैंने इससे कहा कि स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है. इसलिए पड़ती है क्योंकि स्टार्टअप जब कॉमर्शियलाइज होगा, स्टार्टअप जब कॉमर्शियलाइज तभी रेवेन्यू जनरेट होगा. आज आप ओला को जानते हो, क्यों जानते हो? Because of commercial. क्यों जानते हो? Advertisements, commercial. और यू सी ओला ऑल ओवर द वर्ल्ड. Yes. क्लियर? अगर ओला गाजियाबाद के विजयनगर में ही सीमित रहता, विजयनगर से ग्रेटर नोएडा आता, ग्रेटर नोएडा से विजयनगर जाता, डू यू थिंक कि आज ओला को इतना रिकॉग्निशन मिलता? The people those who will residing in Delhi and never come back to Ghaziabad, they would never come to know about Ola. Clear? 10-12 टैक्सी से वो चलाता रहता. क्लियर? लेकिन उसका कस्टमर बेस कितना होता है 10-12 टैक्सी से? 100, 200, 300, 500? इससे ज्यादा तो नहीं. क्या 500 लोगों से उसको रिकॉग्निशन मिल सकती थी? वर्ल्ड लेवल पे आज ओला इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी. क्लियर? और उसके पास जो बेस ऑफ टैक्सी बेस है वो 10-12 लाख से ज्यादा है. इवन दे डजंट बाय एनी टैक्सी, बट दे आर हैविंग द टैक्सी ऑन देयर ऐप इज मोर देन 10 to 12 lakhs. Even they doesn't hire any kind of driver. The driver and taxi of somebody else. क्लियर? अब अगर वो केवल विजयनगर में ही रहता, क्लियर, तो उसके आइडिया को जो मार्केट में बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो रातों रात उसकी कॉपी करते, और ड्यू टू हैविंग सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी, दोस बिजनेस हाउस दे कैन क्रिएट द रिप्लिका. क्लियर? और वो जो उसको कमर्शियलाइजेशन का बेनिफिट होना था, एंजॉयमेंट मिलना था, जो रेवेन्यू वो जनरेट कर सकता था, वो उसके हाथ से निकल गया. क्लियर? आज आपने पेटीएम सबके फोन में है कि नहीं? सबके फोन में पेटीएम है. आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, रिक्शे वाले से लेकर जो आपका वेंडर जो ठेली लगाता है उसके पास भी पेटीएम है. क्लियर? एवरीबडी कैन मेक payment through Paytm, and every businessman till top to lower they are accepting payment through Paytm. Paytm ने पूरा मार्केट में कस्टमर बेस एक्वायर कर लिया, गांव से लेकर शहर तक. आपको Paytm हर जगह एक्सेप्ट होता है. ठीक है? क्या मोबीक्विक हुआ? क्या गूगल पे हुआ? ठीक? क्या आपका फोन पे हुआ? फोन पे सर पेटीएम इतना नहीं हुआ. पेटीएम इतना कोई नहीं हुआ. पेटीएम ने मार्केट एक्वायर कर लिया ना. Yes. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिप्लिकेटिंग देयर बिजनेस आइडिया, बट दे आर नॉट सक्सीडिंग एट दैट लेवल वेयर द पेटीएम हैज बीन रीच्ड. मोबीक्विक का है मार्केट से कब, ठीक? गूगल पे, गूगल की क्रेडिबिलिटी पे चल रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है. अमेजोन पे भी उतना सक्सेस नहीं है. क्लियर? उसके बाद फोन पे नहीं हुआ. इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम भारत पे भी आया था, वो भी सक्सेस क्यों? व्हाट्सएप मैंने क्या कहा, व्हाट्सएप हैव गिवन यू एडिशनल फीचर. एक फीचर है, वो उसकी कंपनी का कोर प्रोडक्ट नहीं है. व्हाट्सएप का कोर प्रोडक्ट क्या है? दे गिव यू द चैटिंग फैसिलिटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट. दे हैव एडेड वन मोर फीचर टू मेक द ट्रांजैक्शन. लेकिन जब व्हाट्सएप इनोवेट हुआ था तब ये फीचर उसमें नहीं था. Means what? The Paytm was the only one who have made the payment gateway through mobile to mobile transaction through QR code. Clear? तो सबसे पहले उसने क्या किया? कस्टमर बेस बढ़ाया, और जितने ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सका था वहां उतने लोगों तक वहां पहुंचा. और once it is occupied by the customer एक्वायर कर लिया ना, तो अगर आपके पास पहले से ही एक चीज है जो सेम सर्विसेज दे रही है, तो क्या आप दूसरी को लेना प्रेफर करोगे? सो दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप. सबसे पहले उसकी जरूरत क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बनाना. इनिशियली
पेटीएम ने आपको कैशबैक भी दिया था। Yes. आप 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे, 1 रुपया कैशबैक, ठीक। 50 रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे, 5 रुपए कैशबैक, कभी कभी 20-50 कैशबैक मिलता था, मूवी टिकट सब देता था। सोचो 100 रुपए का सामान बेचकर 20 रुपए आपको कैशबैक देकर, वो तो लॉस में ही था। ट्रस्ट जीत गया सर, एक तो- ट्रस्ट जीत गया, ट्रस्ट जीता, ट्रांजैक्शन करेगी 100 पे 20 मिल रहे हैं, तो क्या जीता उसने? ट्रस्ट। Trust. That means if they are giving somehow a pleasure environment to their customer, they are making their customer loyal. Clear? And for that they are deliberately facing some financial loss. Yes. And that financial loss is known as CAC. What it is known? That. What is CAC stands for? CAC. Customer acquisition cost. कस्टमर एक्विजिशन। तो शुरू में उसने जो फाइनेंशियल लॉसेस शो किए, दैट इज कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन। और थ्रू आउट ऑफ इंडिया जब वो फैल गया, क्लियर, तो अब उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, डू यू गेट द कैशबैक नाउ? नाउ दे आर एंटरटेनिंग their profit. They are enjoying they acquired their customer base large in number, because when you get the 10 rupees cashback, you said your friend, oh, I have got a cashback of 10 rupees while buying 50 rupees of this product. अच्छा, तुझे मिला, मैं भी करता हूँ। Yes. So we have increased the customer base. और जब एक कस्टमर बेस बढ़ गया, प्रॉफिट होने लगा, तो दूसरी कंपनी मार्केट में उतरी। मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, भारत पे, ये सारे आए। लेकिन इनके आने में और पेटीएम का कस्टमर बेस बढ़ाने में टाइम लगा। पेटीएम बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ। 2014 से पहले आप मोबीक्विक, गूगल पे, फोन पे नहीं देखते थे। ये 2015-18 की बात है जब ये शुरू हुए। लेकिन 2014 से लेके 2017 तक का जो पीरियड था वो पेटीएम का था, जहां पेटीएम पूरा फैल गया। उसके बाद दूसरी कंपनीज उस मार्केट शेयर को एक्वायर नहीं कर पाए, इसलिए पेटीएम को फंड्स की जरूरत थी और उसने इन्वेस्टर से फंड लिया। अब यहां कहानी आती है बीएफटी, बिग फूल थ्योरी की। सपोज करो रामनीश का ही पेटीएम है। रामनीश, इसके पास आया, क्या नाम है तुम्हारा? मुदित को कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, ये मेरा स्टार्टअप। और मुदित को लगा इस स्टार्टअप में कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है, इसको 100 करोड़ दे देना चाहिए, बस 100 करोड़ का मैं 1000 करोड़ ले लूंगा। क्लियर भाई? 10 गुना रिटर्न तो मैं लूंगा। इसने कहा ओके। इसने क्या 100 करोड़ रुपए लिए, उस 100 करोड़ रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट किया। कैसे? एडवर्टाइजमेंट में, कैशबैक में, डिस्काउंट में। क्लियर? तब इसकी कंपनी की वैल्यूएशन थी 1000 करोड़ रुपए। अब मुदित के 100 करोड़ लगा चुका है, पैसे मुदित के खत्म, इसको कंपनी भी आगे बढ़ानी है। क्लियर? तो अब ये मुदित के पास वापस जा नहीं सकता, 100 करोड़ दे रखा है बंदा का, कुछ चाहिए ना इसको। क्लियर? पहले इसके पास केवल 1 लाख कस्टमर थे। मुदित के पैसे खर्च करके इसने अपना कस्टमर बेस 10 लाख कर लिया। आपका क्या नाम है? हर्ष। अब मुदित के बाद यह हर्ष पे गया कि मिस्टर हर्ष, मिस्टर मुदित है फाइनेंस मी 100 crore rupees 1 year back, and that time my customer base was 1 lakh. Today my customer base is 10 lakh. Clear? So if you invest my company, I have got what? 10-fold इंक्रीमेंट ऑफ माई कस्टमर बेस। 10 गुना मेरा कस्टमर बेस बढ़ा है। तो अगर आज आप मेरी कंपनी में 10,000 करोड़ रुपया लगाते हो, तो मैं आपको 10,000 करोड़ का 10 गुना वापस करूंगा। क्लियर? हर्ष ने कहा हाँ भाई ठीक बात है। 1 साल पहले 100 करोड़ से इसने 1 लाख से 10 लाख पहुंचा, मैं इन्वेस्ट करता हूं। ही विल कॉल मुदित, यार तुमने पैसा लगाया था 100 करोड़, कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? अब मुदित कहेगा बेकार है, कुछ नहीं है, मुदित जानता है।
अगर मैंने ये कहा तो ये जो पैसा लगाने वाला होगा वो लगाएगा नहीं और मेरे मुझे वापस क्या कहेगा, यार बहुत अच्छा आइडिया। क्लियर? इसके कहने पे इसने पैसा लगा 2000 करोड़ लगा लगा दिए। इससे कितने लिए थे? 100 करोड़ पहले इसको अमूल चुकाया, फिर उससे कस्टमर बेस बड़ा किया, डिस्काउंट देता गया, ऑपरेशंस करता गया, सारी प्रोसीडिंग करता गया, ऐड करता गया, सब कुछ, लोग जुड़ते गए, कस्टमर बेस बढ़ता गया। वो जो डिस्काउंट है वो उसका लॉस है, कस्टमर तो बढ़ ही रहे। क्लियर? जो वो डिस्काउंट दे रहा है, जो वो कैशबैक दे रहा है, दैट इज द लॉस। क्लियर? अदरवाइज उसका कस्टमर बेस तो बढ़ ही रहा है। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब इसके 2000 करोड़ भी हर्ष के कभी ना कभी तो खत्म होंगे। जितनी बड़ी कंपनी होती जाएगी उतने एम्प्लॉय होते जाएंगे, उतना आपका मार्केटिंग बजट बढ़ता जाएगा। अब हर्ष के भी, इसके तो वापस हो गए मुदित के। अब हर्ष, यह मार्केट सेंटीमेंट चलता है, मुदित के पैसे अगर निकल गए तो मुदित कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, और हर्ष के लगे हुए हैं तो हर्ष नहीं देगा। क्लियर? नाउ माय कस्टमर बेस इज 20 लाख कस्टमर बेस हो गया। अब मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूं, मैंने कहा था अगर 1-1 रुपए भी मैं एक आदमी से कमाता हूं तो पर डे का मैं आराम से कमा लूंगा। क्लियर? तो मेरे लिए आपको पैसा वापस करना मुश्किल काम नहीं है। एंड माय कंपनी इज हैविंग द वर्थ ऑफ 1000 करोड़। क्लियर? आप मेरे इसमें अगर पैसा लगाते हैं तो मैं आपको 25% शेयर दे दूंगा। क्लियर? ले लिया? अब इस तरह करते करते उसका कस्टमर बेस इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि आज उसके पास करीब करीब 1 से 2 करोड़ यूजर हैं। आज मार्केट में उस कंपनी की वैल्यूएशन है 50 लाख करोड़। क्लियर? अब उसको रन करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। अब इतना बड़ा इन्वेस्टर कहां से लाए वो? तो इतना बड़ा मूर्ख वो कहां से लाए? तो वो फिर आपको पकड़ता है। किसको? कस्टमर्स नहीं, स्टॉक मार्केट, जहां पर वो आईपीओ रिलीज करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग। क्लियर? समझ में आ गई बात? 10 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी कंपनी की शेयर प्राइस वो डिसाइड करता है, उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में रिलीज करता है। और लोग क्या देखते हैं, इसका 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ का कस्टमर बेस है, इसके शेयर मार्केट में शेयर खरीद लो, इसकी प्राइस ऊपर जाएंगे। मैंने कहा सेंटीमेंट ड्रिवन मार्केट। क्लियर? क्या हुआ? अगर 10 लाख, 20 लाख लोगों ने भी उसके शेयर 200 या 1000 रुपए में खरीदे, कहां पहुंचा वो? दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल नॉलेज। आज पेटीएम आपको क्या करता है? नो कैशबैक, ओनली गिव्स वाउचर्स। ऊपर से टैक्स भी लगा दिया तो क्यों? 2 रुपए ले गए। नाउ प्लेटफॉर्म चार्ज व्हेन इज द व्हाट? कंपटीटर्स। आज कंपटीटर नहीं है। गूगल पे लोग गूगल का यूज करते हैं किसके लिए? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सर्च करने के लिए वेब में। गूगल पे ज्यादा यूज नहीं करते। अमेजॉन एक आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप शॉपिंग करते हो, लेकिन अमेजॉन पे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेटीएम एक बार जो दिमाग में बस गया, आपके दिमाग में जो पोजीशन उसने ऑक्यूपाई कर ली, वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है। नहीं है। आज लोग पेटीएम को जानते भी हैं, पेटीएम लेना और पेटीएम पे ट्रांजैक्शन करने में कंफर्ट भी है। क्लियर? समझ में आई बात? तो आज की तारीख में पेटीएम इसलिए मार्केट में नंबर 1 है, और अब वो बाहर आ चुका है। सिर्फ एक चीज है, 7 मिनट और सर। Why I'm getting a call? You have to make yourself in demand. If you're not in demand, clear? तो आपको डिमांड में रहना है। तो डिमांड में कब रहोगे? जब काम करोगे।
जब आप काम करें। तो ये जो नॉलेज आपको मिली है, इस नॉलेज में कल जब आप मार्केट में जाओगे, whether you will go for your own business, traditional business, तो आप में इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। वहां किसका पैसा होगा? वहां पैसा होगा आपके फैमिली का, फ्रेंड्स का, ठीक है। इधर यू वुड हैव योर ओन मनी और यू वुड बोरोड मनी फ्रॉम योर फ्रेंड और यू विल इन्वेस्ट योर पेरेंटल अमाउंट। क्लियर? बैंक का लोन मोस्टली लोग कम लेते हैं। क्लियर? क्योंकि बैंक का लोन आपको लेने के अगले महीने से ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बिजनेस लोन की कैटेगरी अलग होती है। क्लियर? बिजनेस लोन अगर आपको मिलेगा तो आपको इंडस्ट्रियल बैंक्स आपको ऑफर करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सिडबी, स्मॉलेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेते लोग। कॉमर्शियल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? मैंने आपको शायद पढ़ाया भी होगा कभी कि जो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया है, एक ब्रिज लोन कॉन्सेप्ट होता है। ब्रिज लोन कॉन्सेप्ट कितने लोग जानते हैं? ब्रिज लोन कॉन्सेप्ट बीबीए फाइनल ईयर करके जा रहे हो, घबराओ मत। 3 महीने बाद जब तुमको रियलिटी एग्जाम दे दोगे, वो आता ना 10 में से 5 कर लो और पास हो जाओ। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे और आपको एक्चुअलिटी का मालूम पड़ेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि आपने क्या लॉस कर लिया। ब्रिज लोन कॉन्सेप्ट होता है जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के पास आप अपना प्रपोजल लेके जाते हो कि भाई मेरे को 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहता है ठीक है, आपके प्रपोजल में मुझे दम लगता है और मैं आपको फंड भी करूंगा, लेकिन पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करो। 200 करोड़ का 1000 करोड़ में दे दूंगा। 200 करोड़ तो आपके पास है ही नहीं, लगाओगे कैसे? 200 करोड़ तो आपके पास है ही नहीं, आप लगाएंगे कैसे? तो आप कॉमर्शियलाइज बैंक के पास जाएंगे। इस कॉमर्शियल बैंक के पास जाके कहेंगे देखिए भाई, मेरा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 200 करोड़ रुपए मुझे मेरे को चाहिए अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे अप्रूवल दे दिया कि अगर मैं 200 करोड़ का लगा देता हूं तो वो मुझे 1000 करोड़ फंड करेंगे। ये अप्रूवल लेटर है। तो उस अप्रूवल लेटर को दिखाकर आप कॉमर्शियल बैंक से 200 करोड़ का लोन ले सकते हो। और जैसे ही आपकी वो इंडस्ट्री खड़ी हो गई, आपने कंस्ट्रक्ट करा ली, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विजिट कर गया, तो वो 200 करोड़ डायरेक्टली उस कॉमर्शियल बैंक को दे देगा। दैट इज कॉल्ड ब्रिज लोन कॉन्सेप्ट। तो यहां क्या हुआ, बजाय आपको 1000 करोड़ का लोन लेने के लिए आपका 200 करोड़ में काम चला, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो 5%, 6% पे आपको लोन देती है, ठीक है। और वो आपको टाइम भी देती है बिजनेस ग्रो करने का। आज आपने बिजनेस खोला, कल जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, तो वो आपको टाइम भी देते हैं। वहां गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है कि आपको सपोर्ट मिले। क्यों? क्योंकि आप नेशन की इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कैसे? बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। लोगों के पास पैसा होगा तभी तो खर्च करेंगे। अब मैं आपको कॉलेज में बुलाता हूं, क्यों? भाई आओगे, टेम्पू वाले के साथ आओगे, टेम्पू वाले को पैसा दोगे, कॉलेज में आओगे, कॉफी वॉफी पियोगे, ठीक। मास्टरों की जरूरत पड़ेगी, तो इकोनॉमी तो बढ़ा रहा हूं। क्लियर? कहानी की बात हो गई। कितने % अटेंडेंस? 75। देखिए वो जो आपका डेबिट नोट है वो मेंटर्स लेके कैंसिल कर लेना, नहीं तो आज गूगल कर लेना कि डेबिट नोट पे पैसा आज से 25 साल बाद भी वसूल कर सकता हूँ। आएगा तो जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी नहीं दिया सर।
कौन कौन है जिन्होंने नहीं दिया? आप खड़े करो, मैं उस दिन बच्चे कह रहे थे सर बहुत सारे। कोई बात नहीं, फॉर्म लेके आएंगे, वो मेंटर पकड़ा जाएगा। तुमने नहीं दिया? अटेंडेंस था। और इसमें इस साल इस सेमेस्टर में नहीं आएगा अभी। आपको एक ही शर्त पे मौका मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर है, नौकरी कर रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ कंपनीज आ रही हैं, इंटरव्यूज दो और इंटरव्यूज दे के निकलो। मेरा मोटिव क्या है, आपके हाथ में अगर 25,000 का अपॉइंटमेंट लेटर है तो आप नेक्स्ट कंपनी से 30, 35, 40 की डिमांड कर सकते हो। क्लियर? तो जो भी कंपनीज आ रही है उसमें बैठो, एटलीस्ट अगर 5 क्वेश्चन उसने पूछे, ठीक, और आप ऐसे 5 इंटरव्यूज में बैठे तो आप 25 क्वेश्चंस के आंसर जान गए कि एचआर नॉर्मली पूछता क्या है। थैंक यू।